So guys, I hope you all have posted some questions. Okay, so we'll be going one by one to all the questions, and I hope those who are attending this session first time, you can ask any kind of questions, anything, not about the operational thing, not about the complaining things. It is just about career or how would be preparation should be, or what are the things needed for the placement. Like the things you all need to be asking as much as possible. Okay, so that is how it is. So I received a lot of questions. So I'll be going more into the every question. Okay. So let me rewrite all the questions. And guys, आप सब लोगों ने थोड़ा सा एक इंटरव्यू, हमने एक बच्चे का इंटरव्यू लिया था कल परसों, तो आप लोगों ने सुना वो कुछ ना कुछ एक दो आंसर्स सुने. Guys, everybody is able to hear me? Yes, yes, sir. Yeah. So what you can say about this interview, what communication and everything. So guys, what do you think that as a graduate I should be acquiring so that मैं भी इस टाइप के कुछ आंसर्स दे सकूंगा. तो आपको इसमें क्या लगा, इस फ्लो में क्या लगा? मतलब we are not here to judge who is that girl or what answers she is giving, correct or wrong. But what do you think, guys? How things are? So can you write at least one statement that you learned from this interview, this thing? Something, and always the learning is always a good practice. So just my question to you, everyone, what have you heard? What do you think? Just write down something. Everybody need to write. At least bring that skill to write something about something. Okay. नहीं तो फिर जावा या पाइथन के बारे में क्या लिखोगे? Okay. So please go ahead, write down something. Let me see how your feedback is. Or whenever it has been asked you to give feedback on something, then you should be able to answer. Okay. नहीं तो वहां पे भी हमको कुछ लग ही नहीं रहा है बोलेंगे तो then that's the problem. Okay. तो हमेशा कुछ ना कुछ होना चाहिए जो आप लोग देना चाहोगे. So what do you think? Just write down something. That is self evaluation. She talked about self evaluation. उसमें और हम में क्या डिफरेंस है ये भी आप बोल सकते हो. हमारे आंसर ऑब्वियसली अच्छे रहेंगे इससे, बट क्या लेवल पे अच्छे कर सकते हो आप, या क्या लेवल पे आपके अच्छे है, या उस लड़की को हम कम्युनिकेट कर देंगे कि ये तुम्हें फीडबैक मिले हैं. तो क्या लगता है? जस्ट गो ahead and write down so that it will be beneficial for her as well and for you as well. So that is what it is. What you learned from this interview? Everybody has to write something. Don't be selfish. Selfish means just मेरे को नौकरी कैसे मिलेगी वो बता दो, काम खत्म. नहीं, इससे जीवन नहीं चलेगा आपका. इससे आप जीवन के अंधकार में निकलते जाएंगे अगर आप केवल अपने बारे में सोचते रहेंगे. जस्ट राइट डाउन समथिंग यू मस्ट लर्न फ्रॉम दिस, क्योंकि आपके लिए चलाया मैंने. ओके, सो जस्ट गो ahead and write down something. Everybody has to write. There is no option. So try to think about what you learned, what capabilities you think that, oh yeah, this 11 year girl has this thing, but I don't have this thing. Maybe I know everybody has more than that skills. Obviously, I'm not comparing, but something to learn from everyone in life. Only move ahead if you learn something. Otherwise, it will be just boring. Okay, so it must. So like that, guys. So I want you all to participate. कि आप हिंदी में लिख सकते हो आप, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो. सो एनीथिंग. सो व्हाट थिंग यू माइट सी दैट अरे यार ये मेरे में नहीं है, ये छोटी सी बच्ची में दिखने को मिल गया, और मेरे में ये थोड़ा सा कम है, या मेरे में नहीं है इससे ज्यादा. कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट मस्ट बी लर्न आउट ऑफ इट. ओके, ये सेशन भी हम जो लेते हैं, जो लोग नए हैं बता दूं, इसमें कुछ ना कुछ लर्निंग ही लेके जाना है. ओके, इसमें कुछ तो टाइम पास करने नहीं आना है कि चलो मेरी समस्या सॉल्व हो जाएगी, ये सेशन करने से मुझे नौकरी लग जाएगी. इट इज नथिंग लाइक दैट. बहुत क्लियर है. तो आप में आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज देखा आपने? श्रीकांत, गुड क्वेश्चन. हाँ, तो अभी म्यूट रखिए 2 मिनट.
कॉन्सेंट्रेट कीजिए गाइस। आप सबने जब देखा तो आपने कम्युनिकेशन देखा, क्या चल रहा है ट्रेंड कम्युनिकेशन का। बोलते हैं ना कि अभी ये पेन का ट्रेंड नहीं है, अभी दूसरे पेन का ट्रेंड आ गया है ना, पार्कर का नहीं आया पर दूसरा कोई तो दूसरा ट्रेंड चल रहा है आजकल मार्केट में, तो वो ट्रेंड लिया जाएगा। तो सब लोग जब आप इस इंटरव्यू को सुन रहे थे, द कम्युनिकेशन विच यू हैव सीन, कॉन्फिडेंस लेवल विच यू हैव सीन, नो हेजिटेशन, जो मन में है वो बात बोलना, ये चीज हो सकता है सबने देखी हो और आप सब में वो चीज होगी भी। तो आप सब लोगों को पहला ट्राई करना है कि इस चीज को आप कैसे ब्रॉटअप कर सकते हो। क्या ये समझ में आया आपको? खुद की समस्याएं तो बहुत रहेगी आपको, जीवन समस्याओं से ही भरा होता है, ठीक है। अ, या भावेश, थैंक यू। तो समस्या समस्या ही समस्या है, ये तो है। तो सिर्फ रोके नहीं होगा, हम सबको आज से ये समझ लेना होगा कि जो लोगों का कम्युनिकेशन खराब है उन सभी को इस लड़की से कॉम्पीट करना है और सोचना है कि यार मेरा कम्युनिकेशन इससे भारी कैसे हो जाए, मेरा प्रेजेंटेशन इससे बढ़िया कैसे हो जाएगा, ताकि मैं किसी भी चीज को नेचुरली कैसे आंसर कर पाऊंगा। आपने नेचुरल वे देखा गाइस? हेलो, देखा क्या? नेचुरल, नेचुरल, अंडरस्टूड? एवरीबडी इज गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यू हैव टू रिप्लाई ऑन दैट, अंडरस्टैंड? यस। यस, मैक्सिमम। अभी हम जो इंटरव्यूज लेते हैं कंपनी के लिए भी लेते हैं, एमएनसीज के लिए, छोटी कंपनियों के भी लेते हैं, ये सारे तामझाम बाद में हो जाते हैं कि मेरा 10 साल गैप है, मेरा ये है ना वो है, मैं पास ही नहीं हो रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ, मेरा प्लेसमेंट का कॉल कब आएगा, सब कुछ आएगा। केवल एक चीज में हमको लैकिंग मिल रही लड़कों की, और वो है इंग्लिश। सीधी सीधी बात करूँ तो वो है इंग्लिश। तो आप सब लोग इसमें इंप्रूव होना चाहते हो क्या? पहले तो ये आपका मन भी है या नहीं है वो सोचिए, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। ट्रेंड तो भाई ये चल रहा है, ट्रेंड में ऐसी अंग्रेजी चाहिए। दूसरा, इस टाइप के नेचुरल आंसर चाहिए। तीसरा, रटे हुए नहीं चाहिए। चौथे, ऐसे 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 देखने वाले लोग नहीं चाहिए। ये समझ में आया? फुल फ्लेज, फुल फ्लो, द वे कम्युनिकेशन शुड बी डन इज दिस इज नॉट एक्सलेंट कम्युनिकेशन, but more than average communication that every graduate should have. Is that clear to everyone? Understanding हो रही है? जो ऑफलाइन बैच के ऑनलाइन बैच वाले, समझ में आ गया? स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल बात है। ये सब समस्या, सर मेरे 85% है, मैं क्या करूं, इसका भी आंसर यही है कि तुम्हें इस टाइप का कम्युनिकेशन आता है तो तुम मार्केट में रह पाओगे या मार्केट में एंट्री कर पाओगे। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू गेट इनटू द मार्केट। ओके, सबको क्लियर? अब मैं बार बार क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सबका आंसर उल्टा देखा जाए तो यही है, हर किसी का समस्या का, ठीक है। तो प्लीज आज से आपको लगता है तो ये इंटरव्यू बार बार देखिए और उससे कंपेयर कीजिए कि मेरा कम्युनिकेशन क्यों नहीं है, मेरा नेचुरल क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं नेचुरल हूं, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये सब चीजें आपको पूछनी है, बलनी है, खुद को क्वेश्चन पूछने की, यार मैं अगर रहता इसकी जगह तो कैसे आंसर दिया होता, ये छोटा सा बंदा बच्चा दे सकता आंसर तो मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, काइंड ऑफ चीज। अब आते हैं आपके क्वेश्चन। गाइज ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सेशन था जो मैंने आपको दिखाया वीडियो, ओके, हर किसी से सीखना। नेक्स्ट, अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने कुछ लिख दिए हैं। अब मैं चार्ट बॉक्स में उसके चार्ट बॉक्स को बंद कर रहा हूं ताकि आप लोग आंसर्स इसके अच्छे से सुन पाए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, आई हैव गॉन थ्रू टीसीएस प्लेसमेंट, दे सेड देयर इज अ स्किल गैप, व्हाट आर द स्किल्स दैट शुड फील्ड, व्हाट शुड स्किल आई शुड एक्वायर। बहुत सिंपल है। अभी कंपनीज को व्हाट इज इनहेरिटेंस, वाई पाइथन इज गुड, ये क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं चाहिए। इसको नेचुरली समझा जा रहा है कि बंदे को आता ही होगा। जब रिज्यूमे में पाइथन लिखा है, मर्न लिखा है, मतलब आंसर तो आता ही होगा। बहुत सिंपल बात करी मैंने, ओके। तो फिर सर क्या चाहिए? तो चाहिए ये आपको, आज सब लोग लीड कोड हो गया, हैकर रैंक हो गया, और चैट जीपीटी पे आपको डालना है ट्रिकी क्वेश्चंस इन टेस्टिंग और जावा और पाइथन, जो भी आपकी स्किल होगी,
और उसके अंदर का एक टॉपिक लिखना है, इनहेरिटेंस एट एक्सपीरियंस लेवल। इस क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वहां पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उससे आपको आपके अंदर की स्किल की गैप समझ में आ जाएगी। लीड कोड में से नहीं कुछ तो डेली एक एग्जाम्पल भी छुड़ाते हो, आपको स्किल जो है अपने आप इनहांस हो जाएगी। डेली वन एग्जाम्पल करो। मैं तो बोल दो डेली नहीं, अल्टरनेट डे करो तो भी चलेगा मुझे, क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स होता है, आपको करना पड़ेगा। ये कोई पढ़ा नहीं सकता आपको, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो समझने वाले होते हैं। इसमें कहानियां समझनी पड़ती है कि क्या बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है। तो आज का मेरा जो पंच लाइन है वो ये है, क्या ये सबके जितने भी लड़के यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं उन लोगों को मेरी एक रिक्वेस्ट है, उनको एक रिक्वेस्ट है बहुत सिंपल, कि आपको ये वाला समझना पड़ेगा। ये समझे? आपको मेरा पहला वाला स्टेटमेंट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि समझ में आ गया है। ठीक है, समझे? जस्ट एक पोल मैंने आपके आगे प्रेजेंट किया है, उस पर आंसर दीजिए। यू हैव पोल। पोल पोल कैसे करते हैं वो खुद को समझ में आ जाना चाहिए। ये आज की नीड है। सर ये पोल पोल क्या बोल रहे, पोल किधर दिखता है? नहीं, तू इंडस्ट्री से बाहर है, तुझे रात दिन पढ़ना पड़ेगा, तुझे टेक्निकल बनना पड़ेगा, अदरवाइज तेरी कोई जगह नहीं। बहुत सिंपल आंसर दिया है, बहुत सादे शब्दों में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर ये पोल पोल कर रहे हो, पोल दो बोल रहे हो आप, और ये पोल क्या है? तो पोल क्या है वो बता, नहीं समझ में आ रहा तो समझ जाना है कि मेरे को पहले तो जूम की स्टडी करनी पड़ेगी, मेरे को यूट्यूब समझना पड़ेगा, मुझे डिजिटली और कैपेबल होना पड़ेगा। समझ में आया? पटापट आंसर दीजिए, फास्ट एवरीवन। मैंने पोल दिया है, पोल मतलब चुनाव, चुनाव नहीं बोलेंगे उसको, सर्वे। सर्वे दिया है आपको, एक क्वेश्चन आया होगा आपकी स्क्रीन पे, फटाफट सॉल्व कीजिए उसको। आज से लीड कोड का एग्जाम्पल आपको सॉर्ट करना है। समझ में आया? ये क्या है मुझे नहीं पता, लिख सकते हो, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट फास्ट स्क्रीन पे देखिए। सर हम ऑफलाइन बैच के, हमको कैसे समझेगा? नहीं, तू ऑफलाइन है पर तेरे को 50% ऑनलाइन ही सीखना है। देर इज नो ऑप्शन इन इंडस्ट्री फॉर द ऑफलाइन। ओके? नहीं सर मुझे ऑफलाइन में ही समझ आता है। नहीं, तुझे समझ आता है, इंटरव्यूअर को नहीं समझ आता है। तू तेरे तक ही रख ये चीज, उसको आगे और मत बढ़ा। तू समस्याओं का ग्रहण अपने ऊपर लगा लेगा अदरवाइज। इस लिखा सबने लीड कोड, यू आर प्रॉमिसिंग मी दैट यू विल बी सॉल्विंग इट। ओके? सर मेरे बुद्धि में ही नहीं जाता, कुछ नहीं जाता तो तेरा ही प्रॉब्लम। सबने देखा, सबको आंसर मिल गया? चैट बॉक्स में लिखिए कि आपको आंसर समझ में आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब आप ये क्लिक करते हो तो आप एक लीड कोड, एक वर्ड को मेमोराइज कर रहे हो कि हाँ यार लीड कोड कुछ तो है। अदरवाइज आपके दिमाग में भी नहीं जाता कि लीड कोड अगर मैं वर्बली बात करके निकल जाता। जब आप इस पोल को, सर्वे को सॉल्व कर रहे हो, देन यू आर गेटिंग। अभी भी केवल 132 में से 100 लड़कों के आंसर आए हैं, मतलब बाकियों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या बातें चल रही है। किसी का जियो का नेटवर्क नहीं होगा, किसी का कुछ नेटवर्क होगा, समझ जाइए। आपके लिए इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। गाइस मैं सही बोला कि नहीं? कुछ को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि किरण क्या बोल रहा है, पोल 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 कर रहा है, इधर देख रहा उधर देख रहा, पोल ही नहीं दिख रहा। बताइए उसकी इंडस्ट्री में जरूरत है क्या? चाहिए ही नहीं है सर। नहीं सर मैं पहली बार जूम यूज कर रहा हूं, कोई जरूरत नहीं तेरी भाई। तो 33 लोग ऐसे जो जिनको समझ नहीं आ रहा कि पोल क्या बोल रहा है, कैसे बटन दबाओ। तो एनीवे, तो ये था पहला। आज आप सब लोगों को लीड कोड सॉल्व करना है। जिनको पता नहीं है, जिनको पता ही नहीं कि लीड कोड क्या होता है, थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि आप लोग कुछ ना कुछ करना चालू करें। ओके? जैसे मैं यहां आया, देखिए मैंने लीड कोड की वेबसाइट खोली, आप इस पे अकाउंट बनाएंगे, पैसे लगते तो पैसे भी दीजिएगा इस वेबसाइट को, पर पैसे देने की जरूरत नहीं। फाइनेंशियल स्थिति आपकी खराब हो सकती है, इसके कारण मैं बोलता हूँ ये फ्री है। आप सब लोगों को ऐसा लीड कोड का वेबसाइट खोलना है। पढ़िए यहाँ पे क्या बोला है। स्टार्ट में आपको पूछा जाएगा सिंपल छुड़ाना है कि टफ छुड़ाना है, तो आप सिंपल सिलेक्ट कीजिए उसमें का। ओके? और सिंपल छुड़ाने के बाद ये क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। पढ़िए, यू आर गिवन टू स्ट्रिंग वर्ड 1 एंड वर्ड 2, merge the string by adding letters in alternative order, starting with word 1 if string is longer than other,
सर थक गया मैं पढ़ के, ना नहीं होगा। पेशेंस, पेशेंस, कंसंट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग करना तेरी मजबूरी है, तेरे को नौकरी चाहिए। अपेंड द एडिशनल लेटर ऑन टू द एंड ऑफ द मर्सिंग। सर ये वर्डिंग नहीं समझी। होगा कि नहीं गाइस? पहला प्रॉब्लम इधर से शुरुआत होगी कि नहीं जब लीड कोड की बात करूंगा? आया ना सर? ये अंग्रेजी इतने आए पाए कि इधर ही गायब हो गया मैं। गाइस मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? क्लियर? लीड कोड वालों को ये पता है, इसलिए उन्होंने इसलिए उन्होंने नीचे एग्जाम्पल दिए। पढ़िए क्या है। वर्ड 1 एबीसी, वर्ड 2 पीक्यूआर। अगर ये दोनों इनपुट देते हैं तो आउटपुट देखिए क्या चाहिए। ए के बाद पी चाहिए, बी के बाद क्यू चाहिए, सी के बाद आर चाहिए। सबको समझाए एग्जाम्पल? हेलो, एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल? यस सर। बाकी लोग राइट डाउन चैट बॉक्स फास्ट। यस सर। हाँ, मेरे को टकाटक चाहिए, इसमें बुरा मत मानिए, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत Yes, sir. वोलाटाइल हो चुकी है, बहुत खराब हो चुकी है। समझे? सो मुझे आपके तरफ से ये एक्सपेक्टेशन है गाइस कि आप इसको अब नीचे का पढ़ो। एग्जाम्पल 2, रीड इट। दूसरा वाला क्या बोल रहा है देखो। ए के बाद पी आएगा, बी के बाद क्यू आएगा और बाद में आरएस चिपक जाना चाहिए। देख रहे हो सब लोग? मतलब आपका एक ही प्रोग्राम ये सब चीजों को सॉल्व करना चाहिए इसमें। ओके, आपको ये समझा? बहुत बेसिक। आपको इसी चीज को सब लोगों को सॉल्व करते आनी चाहिए। ये एक छोटा सा चीज था जो आपको कैसे भी करके समझना पड़ेगा। ठीक है? बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा तकलीफ वाला काम है ही नहीं। तीसरा वाला क्या बोल रहा है देखो। इधर ज्यादा कैरेक्टर है तो ए के बाद पी आएगा, बी के बाद क्यू आएगा और बाद में सीडी चिपक जाना चाहिए। ये हो गया लीड कोड उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी नहीं देखा था। इसके बाद आंसर्स। पहला आंसर खुद यहां पे लिख के देखना है, यहां पे आंसर लिखना है। नहीं समझे तो यहां पे देखिए हिंट्स है। हिंट्स नहीं तो आपको आंसर्स भी मिलेंगे। कैन यू सी हियर सॉल्यूशंस? कैन यू सी हियर सॉल्यूशंस? राइट डाउन चैट बॉक्स, यस और नो? यस सर। बिल्कुल। मेरे को टकाटक चाहिए, मैं पहले बता रहा हूं। इंडस्ट्री को कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की जिनको समझ नहीं आती चीजें। तो ये हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट, ये सॉल्यूशन को दबाता हूं। अब इसमें देखिए सी का सॉल्यूशन, जावा का सॉल्यूशन, पाइथन का सॉल्यूशन, हर किसी का सॉल्यूशन है। मतलब आप कोई भी ट्यूशन लगा लीजिए, वो फालतू वाली बातें नहीं करेंगे। जावा में ज्यादा स्कोप है कि पाइथन में ज्यादा स्कोप है? इंडस्ट्री बोलती है तू जावा में लिख, पाइथन में लिख, मन में लिख, किस में लिखना लिख भाई, पर तू लिख। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं बोलता हो। मैं तेरे को सी प्लस प्लस में लिख देगा तो जावा में जॉब दे दूंगा, तुझे वरी नहीं होना है। देखिए अब जावा के सॉल्यूशन, जावा को दबाया मैंने, देखो जावा के सॉल्यूशन आ गए। ओके, इसके बाद जरा सा इजी तो अपना दबाने का, उसमें एक सॉल्यूशन दिया होगा है ना। ये देखिए सॉल्यूशन दिया है ना। इस सॉल्यूशन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद मेमोराइज करना है और फिर अपने कंप्यूटर को खोलना है, इक्लिप्स को, और वहां पे पहले रन करके देखना है। पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने से जॉब नहीं मिलेगी। फिर इक्लिप्स में इसको रन करके देखना है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी पेस्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार तो भी आपके मन से। तो 2 दिन में एक प्रोग्राम करना है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए, टफ लगेगा तो छोड़ देना है। देखो नेक्स्ट प्रोग्राम, सॉरी नेक्स्ट प्रोग्राम ऐसे। ये बहुत कठिन है बोलोगे आप, ओ सर ये क्या बोल रहा है? देखो, देयर आर n किड्स विथ कैंडल्स, यू आर गिवन इंटीजर एरे। ओ टफ है, टफ है। नेक्स्ट, मतलब मैं क्या बोला आपको, इजी से इजी छुड़ाने की ट्राई करनी है। देखिए गाइस, अंग्रेजी समझते ही हम हार जाते हैं। आज की इंडस्ट्री 5,000 की भी जॉब अगर देनी चाहती है तो उसको ये आंसर्स आने चाहिए। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ा आपका एक सीक्रेट जो था वो मैंने सॉल्व कर दिया है। होपफुली एवरीबडी अंडरस्टूड कि क्या चाहिए, क्या स्किल योर काइंड सब इंफॉर्मेशन। सब लोगों को किस टाइप से इसको आंसर्स देना है। गाइस राइट डाउन नाउ। यस सर अंडरस्टूड। UNDERSTOOD लिखिए।
सर चैट बॉक्स कैसे यूज करते हैं आना चाहिए। लिखो अंडरस्टूड, लिखना है। नौकरी चाहिए ना आपको, मिला के दो, मैं ला के दूंगा नौकरी अगर आप मेरा फॉलो करोगे तो। क्योंकि सारे लोगों को जॉब चाहिए कहीं से, और जॉब के लिए देखो ये चीज लगती है। तो आज आप सब लोग पूरा पूरा प्रयास करेंगे। फ्रस्ट्रेशन आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है अल्टरनेट डे ना, तो आप अल्टरनेट 3 डेज लिख लो मेरे भाई, चलेगा मुझे। नहीं कुछ तो 10 एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे ना, तो आपका बुद्धि का विकास हो जाएगा, खुल जाएगा। हाँ, तो ये स्किल गैप सबको समझा। स्किल मतलब यही है, वो लॉजिकल क्षमता देखना चाहते हैं, और इंडस्ट्री में जो टूल्स यूज होते हैं उसको देखना चाहते हैं, जैसे गिटहब हो गया, है ना। थोड़ा सा डेवऑप्स का नॉलेज वो चाहिए, मेवन चाहिए, ये भी समझा। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, बट छोटी छोटी आनी चाहिए, बहुत सिंपल होती है, ठीक है। ये अगर आ गया देन यू आर गुड एट इट। ओके, डेवऑप्स मतलब क्या है, ऑटोमेशन, थोड़ा सा ऑटोमेशन आना चाहिए। दूसरा, टीसीएस की जब बात करते हो तो टीसीएस में जब नेक्स्ट राउंड्स वगैरह होते हैं तो उसमें डेवलपर को टेस्टिंग का भी नॉलेज आना चाहिए, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा, मतलब बेसिक्स नहीं, क्या कि टेस्टिंग क्या होती है, यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और ये सब यहाँ पे द किरण एकेडमी में केयर लिया जाता है। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी माइट हैव अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट। Learning DSA is good for package? Yes, absolutely. Yes, yes, yes. But there is no secret sauce कि जैसे DSA पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। पहले कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ना है जो जावा में होता है, उसमें का DSA पहले समझना है, और बाद में नेक्स्ट DSA पे जाना है। सर ये क्या है? ये मेरा टेबल है, ओके, ये मेरा टेबल है। इस टेबल पे बहुत सादी भाषा में मतलब बहुत सारी चीजें रखी हुई है। इस टेबल पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो देखो ये सर्कल है ना, चिप्स है, समझ लो ये सर्कलर। ओके, तो क्या होगा मेरे को बताओ सब लोग, अभी समझ लीजिए, मैंने ये मेरी चिप्स है। आपको मैं साधा क्वेश्चन पूछता हूं, आपको बोला कि ये जो तामझाम है, ये जो मटेरियल है, इसको सही से अरेंज करो। गाइस, सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अभी देखो, अरेंज नहीं करने की वजह से इसने अपने टेबल की पूरी स्पेस ले ली, पूरी स्पेस ऑक्युपाई करके बैठा। अब मेरे को बुक अगर रखनी है, इस पे किताब रखनी है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कीप बुक ओवर हियर। इसलिए अच्छा अरेंज करना है। देखो, इसको यहां रखना चाहिए था, एक के ऊपर एक, थोड़ा सा, है ना, इस टाइप से। देखो, सॉरी, इसको यहां रखा, इसको यहां रखा, ये सारे स्क्वायर को यहां रखना चाहिए था। ये हो गया डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मतलब कुछ भी नहीं होता है, केवल चीजों को अरेंज करना। पहले ये बुद्धि में डाल दो। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के पहले वो होता क्या है वो तो पता चाहिए ना। तो वो मैंने बताया यहाँ पे कि क्या होता है। अभी पर एक लड़का बोलेगा, अरे सर बड़े सर्कल और छोटे सर्कल मुझे अलग निकालने हैं, तो बहुत तकलीफ होगी ना, इसमें से छोटा सर्कल निकालना है। इसलिए एक सर्कल, बड़े वाले सर्कल यहाँ रख देते हैं, छोटे वाले सर्कल यहाँ रख देते हैं, और एक अच्छा स्ट्रक्चर हो गया, है ना। मीडियम वाले सर्कल यहाँ रख देते हैं, तो और अच्छा। तो डेटा स्ट्रक्चर मतलब अरेंजिंग अ मटेरियल इन अ प्रॉपर वे, in a proper way so that anybody can take out anything from it easily। अगर ये सबको एक ही जगह रखोगे तो नीचे का स्लाइड निकालने जाओगे तो ऊपर से गिर जाएगा, तकलीफ होगी। या तो एक एक निकालते बैठोगे, प्लेट एक एक प्लेट, एक एक प्लेट नीचे रखते जाओगे तो समय लगेगा। ये सारे फैक्टर्स का स्टडी करना मतलब डीएसए है। आपका प्रॉब्लम है डीएसए गूगल पे डाला, 4-5 एल्गोरिथम आए, पढ़ लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए ऐसे स्टडी नहीं करते। डीएसए मतलब पहले आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क आना चाहिए। इसमें भी तो यही होता है, जिनका आप में से कलेक्शन हुआ होगा यही होता है। अब इसमें कलेक्शन के अलावा और कौन सी चीज है जिससे कि चीजों को अरेंज कर सकते हैं, वो आना मतलब डीएसए है। अच्छे पैकेज के लिए जरूरी है, पर पढ़ने का तरीका जो है, आज तक मैंने बहुत सारे लड़के देखे डीएसए प्रिपरेशन किया पर डीएसए क्या है वही नहीं पता, डीएसए में क्या पढ़ना है वही नहीं पता।
तो डीए से मतलब चीजों को सही से अरेंज करना, ये समझे गाइस। डीए से मतलब जावा पाइथन नहीं होता है। क्लियर? ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? पहले मेरे को डीए से आता है, जावा जावा नहीं रहता। डीए से मतलब अरेंज करने के नए नए तरीके, समझे? इस टाइप से होता है। जैसे अगर मेरे को डीए से पढ़ना है, बहुत लोगों को पैकेज की एक उम्मीद होती है कि मुझे अच्छा पैकेज मिलेगा। देखो, लर्न डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, है ना? तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ये देखो एरे। एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही है, उसको तो अच्छे से आना चाहिए। स्ट्रिंग एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कैरेक्टर्स जो लेटर्स होते हैं उसको रखा जाता है। लिंक लिस्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, लाइक दैट हैश मैप, ट्री मैप, ग्राफ, ये सब कुछ है। मैंने बोला सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये सारा 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 आ जाना मतलब डीए से हो गया। दैट्स इट। तो जिनको भी डीए से करना है, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एरे, व्हाट इज स्ट्रिंग, व्हाट इज लिंक लिस्ट, व्हाट इज क्यू। ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, अच्छे से अच्छे साथ तरीका ढूंढते आना चाहिए। और एक दिन ये आ गया कंसेप्ट, बाद में आप जावा पढ़िए, पाइथन पढ़िए, कुछ ही पढ़िए, डजंट मैटर। ओके, तो आई थिंक मैंने आंसर दे दिया। आंसर इज यस। बट कैसे पढ़ना है, कहां मिस्टेक करते हैं, वो प्रॉब्लम की। पर पहले नहीं पढ़ना है, पहले आपको एरे तो अच्छे से आ जाए, एरे लिस्ट अच्छे से आ जाए, स्ट्रिंग अच्छे से आ जाए, डेटा टाइप्स अच्छे से आ जाए। ये सारी चीजें अच्छे से आने के बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगी डीएसए। आज आप ऑलरेडी लेट हो, जिनका प्लेसमेंट हुआ नहीं है या बाहर जॉब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आज की डेट में डीए से करके जाना मतलब तकलीफ है, क्योंकि आपको पहले बेसिक्स को बनाना है। बेसिक्स पे फोकस कीजिए सब लोग। अपने आप बाद में जब जॉब में लग जाओगे तो डीए से होगा। कई लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ, कंपनी में जॉब करते हैं और करते करते डीएसए का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि डीएसए ओवरनाइट नहीं है, 15 दिन में डीएसए पढ़ लेता हूं ना, होता ही नहीं है। 8 8 9 9 10 10 महीने उसके एल्गोरिथम्स पढ़ने होते हैं। फिर आप नेक्स्ट जॉब पे अच्छे से डीएसए करके अच्छी कंपनी में जा सकते हो। एचएसबीसी हो गया, या एनवीडिया हो गया, टाइप ऑफ कंपनीज, ईवाई हो गया, ये सारी कंपनीज में आप जा सकते हो। मैं गूगल, फेसबुक, अमेजोन के नाम ही नहीं ले रहा हूं, इन कंपनियों में भी डेटा स्ट्रक्चर लगता है। सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज डीएसए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes. समझा क्या फिर से? तो गलती नहीं करना है गाइस। कैसा है, बाहर जैसे मैंने अभी, मैं घर के लिए टेबल बना रहा था तो मैंने संगमरमर का भी टेबल देखा, लेमिनेट का भी देखा, एक्रिलिक का देखा, ऐसे बहुत सारे तरीके देखे, पर मेरी जेब जितनी अलाउ करती थी उतना ही मैंने टेबल लिया। बट मुझे पता है संगमरमर का टेबल, मार्बल का टेबल बहुत जबरदस्त लगता है घर में, पर मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उतनी मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, उतना मेरे जेब में पैसा ही नहीं है। तो इस टाइप से आपको डिसीजंस लेनी है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है। समझे? तो गाइस, ये मार्बल का आपको एग्जांपल भी समझ में आया होगा और आई एम सेइंग। बाकी लोग पोल वोल करते जाओ। मतलब कोई भी डिसीजन लेते समय 10 बार सोचना है। बाहर वैसे भी जॉब्स बहुत कम है। गुड, समझा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल बी टेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, फुल कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। यस, फुल फुल कंसंट्रेशन। देखो, आप जब क्लास कर रहे हो ना, तो सबसे पहला काम, आप मिस्टेक मत करो। रिकॉर्डिंग आप देखते हो, रिकॉर्डिंग मत देखिए। रिकॉर्डिंग तभी देखना है, एक तो आप अब्सेंट हो और नॉट अंडरस्टूड। पहला सबको रिकॉर्डिंग कब देखना है कब नहीं वो समझा, अदरवाइज आप अपने लाइफ में टाइम की बर्बादी कर रहे हो, आप समय को काट रहे हो और एक दिन समय आपको काटेगा। बेटर है कि आप ये फालतू चीज ना करें। ओके, रिकॉर्डिंग में टाइम पास होता है 2 2 घंटे का, वो दोबारा दोबारा मत करना, पहले क्लियर हो जाओ। समझे? नेक्स्ट, नॉट अंडरस्टूड में ओनली दैट पोर्शन, फालतू में चालू करके इंडेक्स से मत पढ़िए उसको, शुरुआत किया बस सुनते जा रहा है, नहीं। दूसरा, आपको रिकॉल करना है जो पढ़ाया। मतलब मीन्स व्हाट यू नीड टू डू, डू रिकॉल। रिकॉल मीन्स विदाउट ओपनिंग अ बुक, विदाउट ओपनिंग अ
बुक यू नीड टू रिकॉल द थिंग्स। ओके, प्रॉब्लम क्या है ना, हम बुक खोल के रिकॉल करते हैं सबसे बड़ा। इसमें दो रिजल्ट आ सकते हैं आपको, एक तो जीरो आएगा, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, या तो बहुत आ रहा है, या तो मीडियम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं आ रहा है तो फिर से एक सिस्टम करना पड़ेगा, और वो ये है, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। ये दोनों चीजें अगर हो रही है तो रिकॉर्डिंग नहीं देखना है। अब ये जो हो गया ना, इसके बाद आपको कोई ना कोई ट्यूटोरियल पढ़ना है। ये ट्यूटोरियल या बुक बुक दी जाती है अपने तरफ से, बुक ले लीजिएगा, ट्यूटोरियल रीड करना है, और उसके बाद इसकी नोट्स निकालने हैं। नोट्स निकालने हैं। अब नोट्स निकालते समय ध्यान देना है, आफ्टर 2 मंथ्स इट इज यूजफुल। मतलब आपका इंटरव्यू जब है ना, उसको टारगेट करना है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम नोट्स भी ऐसे बना लेते हैं, लंबे लंबे नोट्स। अरे भाई, जब इंटरव्यू रहेगा तो तू रिवीजन कैसे करेगा, है ना? तो इतना बड़ा इनहेरिटेंस टॉपिक है, उसको इतने से संक्षिप्त में सारे पॉइंट्स आने चाहिए ताकि आप रिवीजन कर सको। ठीक है, इतना आपको करना है। एंड बाकी का समय लॉजिकल एग्जाम्पल पे देना है। इसका क्या करना है आपको, लॉजिकल एग्जाम्पल ट्राई आउट करने हैं बाय टेकिंग जस्ट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम क्या है ना, आप क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी देख रहे हो और सॉल्यूशन भी देख रहे हो, है ना? तो कभी भी आंसर आपको नहीं आएगा, और आएगा भी तो इंटरव्यू में आप फेल होंगे। सॉल्यूशन नहीं देखना है, ये समझे? बस इतना आप कर लीजिए, और समय मिल जाए तो चैट जीपीटी का पूरा यूज करना है फॉर फाइंडिंग ट्रिकी क्वेश्चंस ऑन टॉपिक। ओके, जो भी आप टॉपिक प्रिपेयर किए हो, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दिन का शेड्यूल कैसा होना चाहिए? एवरीबॉडी अंडरस्टूड लिटिल Yes, बिट? sir. सिंपल। Yes, sir. आपकी मिस्टेक क्या हो रही है, आप ऐसा बुक खोल के रिवीजन करते हो। अरे बुक खोल के रिवीजन कैसे होगी मेरे भाई? फिर तो सबको ही होगी ना, वो 12वीं क्लास वाला लड़का भी, लड़की भी सॉल्व कर लेगी उसको ना। आप वही पे प्रॉब्लम भी देखते हो और तुरंत सॉल्यूशन देख लेते हो किसी एग्जाम्पल का। अरे फिर कैसे होगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। आप आधा घंटा उस पर पहले देना चाहिए था कि मेरे को आंसर नहीं आता है, ऐसा पहले पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जीवन में, जब तक आपको कोई आपकी कमजोरी नहीं बताता है तब तक आप उड़ते रहते हो हवा में, है ना? और हवा में उड़ने की वजह से आपके अंदर की कमजोरी जो है उसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। बट जब आप रिकॉल करोगे, मुझे सर ने क्या पढ़ाया आज, जब आप ये सोचोगे और पता चलेगा अरे यार कुछ नहीं आया, मतलब आप डिसीजन मेकिंग करोगे। कि डिसीजन मेकिंग मतलब कौन सी, कल क्लास में ध्यान दूंगा, आज रिकॉर्डिंग देखूंगा, कुछ नहीं याद आता मतलब मेरे अंदर कुछ तो फॉल्ट है, चलो कुछ तो किया जाए। पर आप क्या करते हो, तुरंत रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं समझी। गाइस मैं सीधी बात बोल रहा हूं कि नहीं, तुरंत रिकॉर्डिंग खोल दिया तो आपको आपका प्रॉब्लम ही नहीं पता कि आपको कुछ समझा भी, याद आया नहीं आया, ट्यूशन में जाके बैठा था, उतना बड़ा पैदल चल के आया था, ऑनलाइन में समझता नहीं करके बोला था, तो कहीं अभी देख। दूसरा, ऐसे राइट डाउन अ प्रोग्राम फॉर एडिंग अ टू नंबर, तुरंत सॉल्यूशन देख लिया ना। या तो ऐसे हाँ आता है मेरे को, नहीं लिख के देखने का, ओ आ गया तो बढ़िया है, सो जाओ जल्दी से। पर नहीं आता, पहले पता करना है आपको, ओ मेरे को तो एडिशन ऑफ टू नंबर नहीं आ रहा है, फिर सॉल्यूशन देखेंगे, फिर बिना देख के करके देखेंगे, फिर सॉल्यूशन वो भी नहीं जम रहा है, फिर जैसे कि वैसा लिख के देखेंगे, फिर डिलीट मार के एक बार लिखेंगे। आपको हजारों चीजें नहीं करनी है, आपको 50 चीजें करनी है, पर ऐसी करनी है कि नींद में भी पूछ ले तो आंसर आ जाना चाहिए। गाइस ये समझा ना? सर 22 टॉपिक है कोर जावा में, पाइथन में सर 50 टॉपिक है। 50 कौन बोला था भाई, तू 30 ही कर, और ऐसे कर टकाटक, ये आंसर्स देते आएगा। आप उस लड़की का इंटरव्यू देखिएगा आज, जो पता नहीं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही है, आई डोंट नो अबाउट इट। इंटरव्यूअर लाइक इट, और इंटरव्यूअर डोंट लाइक घसे पीटे आंसर्स। ये सबको इस क्वेश्चन का आंसर समझा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इस पे समय भी लिया गाइस। ये एवरीबॉडी होपफुली गॉट द आइडिया कि भाई क्या गलती हो रही है। मैं केवल समय तो नहीं काट रहा हूं, ये भी आपको पता चल जाएगा, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी आपको तो समझ में आता ही है, पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को तो अभी पोलिंग नहीं समझ आ रहा कि पोल पोल क्या हो रहा है इधर। गाइस पोलिंग हो रही है, समझे? क्लियर? आपके आगे रिजल्ट्स भी आते हैं देखो, तो इस वे में है ये, ठीक है? तो पोल ये वो चीजें थोड़ी सी अवेयरनेस करो, ठीक है? नेक्स्ट।
सर मेरा बीएससी मैथमेटिक्स हुआ है, पर जो मैं देखता हूँ बीई बीएससी बीटेक वो इन्हीं के लिए मेरे को जॉब्स मिल रही है, तो मैं क्या, देखिए ऐसा नहीं है। आपको ओपनिंग बी बीटेक को अगर 4 ओपनिंग आती है, आपको 1 मिलेगी, 1 आउट ऑफ 4 आपके लिए भी है, बट आपको उतना केपेबल होना पड़ेगा। दूसरा, कंप्यूटर साइंस से जब पढ़ के जाते हो तो इंटरव्यूअर को पता होता है कि थोड़ा बहुत तो कंप्यूटर जानता होगा, पर बीएससी मैथमेटिक्स वाले को थोड़ा सा ज्यादा खींचते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। इसीलिए आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस चीज को आपको सॉल्व करना है, उस चीज को आपको सॉल्व करना है। सो अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्या? यस, आंसर मिलेगी। ये समझ में आया? यस, आंसर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। क्लियर? सो व्हाट आई एम सेइंग इज टू यू ऑल कि अपना प्रोफाइल देखिए। अभी जब मतलब मैं बीसीए हूं, भाई बीसीए वाले को क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि बीटेक वाला कंपटीशन में आपके साथ, तो बीसीए वाले को ऐसी स्टडी करनी है कि वहां पे हम कट ये कर दे, ये समझे, उसको कॉम्पीट कर सके। तो आपको अपनी कमजोरी समझना है, पर आईटी में जाना है तो जाना है, क्योंकि आईटी के सिवा दूसरी जगह जॉब्स नहीं है। आईटी की से दूसरी जगह जॉब्स नहीं है, मतलब नहीं है। नेक्स्ट, ओके, ये भी समझा सबको? जो नॉन आईटी वाले लोग हैं, गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सर माय क्वेश्चन इज टू बिकम प्रोफेशनल टीचर पीएचडी। या एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, पीएचडी का स्कोप थोड़ा सा खत्म हो गया है अपने इंडिया में। प्रॉब्लम क्या है ना, पीएचडी एमटेक सबको सेम ही मानते हैं, तो थोड़ा सा मैं ये डिस्करेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उसमें जब क्रीम रहोगे ना तो अच्छा जॉब मिलेगा। कॉलेजेस में भी बहुत ओपनिंग होती है, अभी लोग वहां पे भी नहीं मिल रहे हैं। सो दैट इज व्हाट आई वुड से। सो यस, देयर इज अ स्कोप, बट प्रोफेशनल टीचर के लिए आपको कैसा है, अगर आप गवर्नमेंट साइड में जाते हो तो आपको सैलरी इंक्रीमेंट्स वगैरह उनके रूल्स रेगुलेशन से होता है, बड़ी यूनिवर्सिटी में भी उनसे रेगुलर सेटल्ड लाइफ होती है। बट आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाओगे तो वहां पे आपकी क्वालिटी पे आपका पेमेंट बढ़ेगा, इसलिए बहुत सारे लोग प्राइवेट प्रीफर करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां पे अर्निंग हो सके। इट इज दैट इज व्हाट इट इज। बी मैकेनिकल स्टूडेंट्स का भी वही है जो बीएससी मैथ है, पर बी नाम होने की वजह से थोड़ी सी ग्राइंडिंग आपकी कम होती है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। यस, 2021 है तो क्या सर मैं फ्रेशर हूँ? यस, यू आर फ्रेशर, नो प्रॉब्लम। बट कैसा है ना, आपको खुद को समझना है कि 2024 वालों को थोड़े से ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो कम सैलरी पे भी तैयार हो जाते हैं, 5,000 भी दो इंटर्नशिप 3 महीने के लिए, बाद में 3.5 मान लेते हैं, 10,000 पे भी मान लेते हैं, 15,000 पे भी मान लेते हैं। बट 2021 वाले लोग बोलते हैं नहीं, मेरा दोस्त तो पहले जॉब पे लग गया था तो उसको ज्यादा सैलरी मिल रही, मैं लेट हो गया तो क्या हुआ, मुझे उसके जैसा करना है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सैलरी पे। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है सबके लिए अप्लीकेबल है। प्लीज गाइस, एवरीवन आई एम रिक्वेस्टिंग, आप सब लोग को समझ में आना है। आप मुझे बताइए, आप बहुत सारे ग्रेजुएट्स थे, बहुत सारे ग्रेजुएट्स, ओके। ये वाला एक बॉक्स है, अब सब लोग मेरे को आंसर करेंगे, ओके। ये एक बॉक्स है, इतने ग्रेजुएट्स इस साल बाहर निकले। मुझे बताइए, इसमें से जो एकदम क्रीम थे, आईआईटी एनआईटी, उनका प्लेसमेंट हुआ नहीं है, फिर भी इतने लोग चले गए कि नहीं चले गए? ये आईआईटी एनआईटी वाले, हाँ या ना? इनको कहीं ना कहीं तो हो गया ना? राइट डाउन यस इन चैट बॉक्स इफ यू अंडरस्टूड, है ना? हाँ। अब क्या हुआ, उसके बाद आपके कॉलेज के जो थोड़े से सही सही लड़के थे, वो कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो गया, सही है ना? उसके बाद कुछ लड़के जो है कॉलेज में ही प्लेसमेंट हो गया उनका, ठीक है। कुछ लड़के जो है वो कॉलेज से बाहर निकलते ही बिना ट्यूशन से ही कहीं ना कहीं पे लग गए, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटेलिजेंट थे, तो ट्यूशन की जरूरत ही नहीं, है ना? उसके बाद ऐसे आईआईटी एनआईटी या अच्छे कॉलेजेस के लड़के हैं जो रिपीटेड वाले, वो लग गए। रिपीटेड नॉन प्लेस्ड वो भी लग गए, है ना? उनको भी कोई ट्यूशन की ऐसी जरूरत नहीं थी गाइस, ये समझा क्या? फिर
कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी गांव घूम रहे इधर उधर टाइम पास, अभी भी सोच नहीं रहे कि मैं कहीं पे अपनी स्किल को बढ़ाऊं और करना ही नहीं चाहते वो जॉब। नॉन एलिजिबल, खेती कर लेते हैं, पापा का बहुत बड़ा ये है कंपनी उसमें, है ना, तो वो लोग वहां खुश है, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बचे कौन बताओ? हेलो सब लोग बताओ, कौन बचे? बोलिए। कौन बचे हैं? समझे कि नहीं? ये हमारा लास्ट वाला स्टेज है जो हम बचे हुए लोग हैं। मैक्स ये सबके लिए अप्लीकेबल नहीं है, नहीं तो बुरा मान लोगे। 90% पर यही है, 80% लिख ले तो आपके समाधान के लिए, ताकि आपको बुरा ना लगे। हाँ या ना? गाइज एवरीबडी एग्री टू दिस फर्स्ट? लिख लो एग्रीड है कि नहीं है। हम नीचे का ये है सबसे स्टैक में बचे हुए है ना, बाकी सबके तो प्लेसमेंट वेसमेंट हो गए हैं, है ना, सबको नौकरियां वोकरियां लग चुकी है। अब हमारा कर्तव्य ये है, हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस सच्चाई को जाने, हम इस सच्चाई को जाने। ये पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है, ये 25-30 हजार देके, 20 हजार देके, समझे? हम इनको समझे कि, और एक इससे एक अपना एनालिसिस निकाल के लिए जाए कि यार ऐसा है क्या, मैं तो मैं किरण इस रेंज का लड़का है, मैं इस टैग से बिलोंग करता हूँ, मेरा अभी तक नहीं हो पाया, बाकी लोग तो कॉलेज के पास आउट होने के में ही हो गए थे, है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए? समझे? जॉब लगेगी ना, यहां से भी जॉब ही लगेगी, मैं ये नहीं बुरा नहीं मानना, किसी को भी जॉब तो लगेगी, बट मुझे क्या करना चाहिए उस जॉब के लिए, वो मैटर करेगा, है कि नहीं? ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। गाइज मैं ये सही बोल रहा हूं कि नहीं? जॉब लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, बट गाइज आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड हु वी आर? सबसे पहला क्वेश्चन बंदे ने पूछना चाहिए किसी ने भी इस जीवन में, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं? आंसर्स मिल जाएंगे, तुम कैसे हो। गाइज मैं सही बोला कि नहीं, बता दूंगा। जिस दिन आपने खुद को क्वेश्चन पूछ लिया कि मैं कौन हूं, तो आपको आंसर मिल गया कि तुम कौन हो। बोलिए चैट बॉक्स से अगर मैं सही, या चैट अनम्यूट कर सकते हो गाइस अगर मैं सही बोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन सबको पूछना है, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या करता हूं, मेरे को क्या चाहिए, मेरे लक्ष्य क्या है, मेरे गोल्स क्या है, ये पहले होना चाहिए। मुस्कान, राइट और नॉट? तो हमें हमें इसको कॉम्पीट करना है, हमें इसको इधर लेके जाना है, यहां से यहां लेके जाना है, इनकी लेवल पे जाना है, इनकी लेवल पे जाना है, इनकी लेवल पे जाना है, चढ़ते जाना है। ये एक प्रोग्रेशन बार है। आफ्टर 2 to 3 years यू विल सी यू ऑल आर इक्वेलेंट। एटलीस्ट आपके अंदर इतना जिगर होना चाहिए कि आप इस चीज को कैप्चर कर सको, नहीं कुछ तो आप इतनी लेवल तो चढ़ के दिखाओगे 3 साल बाद। इन 3 years यू विल बी गोइंग हियर। बाकी सब सेम हो जाते हैं। शुरुआत की लाइफ में थोड़ी दिक्कत है, पर बाद में आप जो चाहते हो अच्छे से कर पाते हो। ओके, तो इस टाइप से आप सबको याद रखना है। गाइस एवरीबॉडी क्लियर नाउ? आस्क फ्रंट ऑफ मिरर, यस। मैं कौन हूं, मैं कितना करता हूं, मैं कितना दूसरों की इज्जत करता हूं, मैं कितना काबिल हूं, मैं रात को कितने बजे तक जागता हूं, मैं कितना टाइम पास करता हूं, मैं कितना पढ़ता हूं, मैं जो बोला गया सर ने वो कितने बार करता हूं, मैं मोदी जी जैसे। सही है कि नहीं? मोदी जी का भाषण सुना है कि नहीं? मैंने पुल बनाया, मैं 2047 में भारत को महासत्ता बनाऊंगा। उसी प्रकार आपको होता है मैं लिख लो, मैं MAI लिखो अगर समझ में आई मेरी बात तो। MAI लिखो चैट बॉक्स पे, 150 रिप्लाई चाहिए मेरे को। राइट डाउन MAI, मैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं
जीवन में हम मैं पे बहुत कम समय देते हैं, तू पे ज्यादा समय देते हैं। तू कैसा, तू क्या, तू क्या, तू के वो क्या नहीं, मैं आज से सब लोग मैं करते रहो। वाई जावा अपॉर्चुनिटीज आर लो, यस, क्योंकि पहले 1000 थी तो पाइथन की 50 थी, मॉन की 50 थी, पर अभी क्या होते गया, ये लोग भी बढ़ रहे हैं तो इनकी 250 हो गई, नौकरियां उतनी हैं, इनकी 300 हो गई समझ लो, तो बची इसके पास 700। अभी भी मार्केट शेयर है, बट ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। कुछ समय बाद अभी समझ लो 300 हो गई, 1000 शेयर इतना ही है, 1100 का, 1000 शेयर उतना ही है, ये समझे ना, इतना स्टैक है जॉब का, क्योंकि लोग भी बढ़ रहे हैं। आप बोलोगे सर कंपनियां तो बढ़ रही है, अरे पर लोग भी बढ़ रहे हैं, तो 1100 ही है। तो नौकरियां उतनी है, पर होते क्या जा रहा है, यहां पे फिर से जॉब बढ़ रहे हैं, ये 400 हो गया, तो यहाँ का जो स्टैक है अभी थोड़ा सा इक्विवेलेंट आ चुका है, इसलिए फील हो रहा है कि हमारे पास कुछ तो मिसिंग है। इज दैट क्लियर गाइस? तो अपॉर्चुनिटीज कम नहीं हुई है, दूसरी लैंग्वेजेस आपको कॉम्पीट कर रही है, दूसरी लैंग्वेजेस समझ पा रही है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा प्रतीत होता है कि जावा की जो अपॉर्चुनिटीज है वो थोड़ी सी कम होते जा रही है, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब दूसरों की बढ़ी है ऐसा भी नहीं है, पर दूसरों की बढ़ते जा रही है, स्टैक उतना ही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है किसी ने, सर व्हाट इज द करेक्ट वे टू अप्लाई फॉर जॉब्स थ्रू लिंक्डइन? यस गणेश, यू आर करेक्ट, चैट जीपीटी से बोला। अभी सुनिए, व्हाट इज द करेक्ट वे टू अप्लाई फॉर जॉब्स। प्रॉब्लम यही है, यहां पे अप्लाई करके कुछ नहीं होना है, पहले सबको समझा क्या, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, नथिंग नथिंग नथिंग। बहुत 1% 2% को जॉब मिलेगा, इससे अप्लाई से कुछ नहीं होता, ये एक्सपीरियंस लोगों की। पर फिर सर लिंक्डइन पे क्या करें? लिंक्डइन इज फॉर शोकेस योर स्किल, इससे आपको विजिबिलिटी मिलेगी। मार्केट में आप अपने आप को, जो कोई प्रोग्राम करते हो उसको आप वहां पे पोस्ट कीजिए, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो पोस्ट कीजिए। समझे? जितना अच्छा आप कर सकते हो, ओके। आप कहीं पे कोर्स कर रहे हो, डिस्प्ले कीजिए। अगर आप कहीं पे, अभी आप में से पूछो, किसी ने द क्रेन एकेडमी में आपने कोर्स लगाया और जावा सर्टिफिकेशन कर रहे हो, कितने लोगों ने आप में से पोस्ट किया? मेरे आंसर दो। आई एम डूइंग कोर्स किया किसी ने? एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, ये प्रॉब्लम है, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, यू आर नॉट एबल टू शोकेस योरसेल्फ। आप क्या चाह रहे हो, घर का ताला ना खोलते हुए तिजोरी का पैसा मैं चुरा के ले जाऊं? आपको एग्जाम्पल समझ में आया? हर कोई क्या सोच रहा है, उस घर का तिजोरी टूट के डायरेक्ट पैसा मेरे जेब में लेके भाग जाऊं ना। पहले वॉच रखना होगा, घर का मालिक कितने बार बाहर जाता है, कितने बजे आता है, उसके बाद प्रॉपर सीसीटीवी को बंद करना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉपर उसका लॉक तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर देखना पड़ेगा, फिर हो सकता है बेडरूम में फिर से एक बड़ा सा लॉक मिल जाए, उसको तोड़ना होगा, और ऐसे करते करते बीच में कहीं सायरन बज गया तो भाग जाना पड़ेगा, दूसरे दिन फिर ट्राई करना पड़ेगा, तीसरे दिन फिर ट्राई। हो सकता है हम पकड़े जाएंगे, वो अलग बात है, बट आपका प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है? लिंक्डइन यू आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब, नो। समझे? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका प्रॉब्लम ही अलग है, आप चीजों को समझ ही नहीं पा रहे। आपको लग रहा है लिंक्डइन में गए, प्रोफाइल बनाया, जॉब अप्लाई करने, अरे इट्स नॉट ए naukri.com, इट इज नॉट ए naukri.com, इट इज नॉट ए indeed.com, इट इज नॉट a monster.com, इट्स नॉट a shine.com, इट्स नॉट a hire.com और समथिंग। ये समझ में आए? सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? पहले अभी आप लोगों ने बताओ, यहाँ पे शोकेस किया कि आप कोर्स कर रहे हो, अरे तुमको अलग ही बुद्धि चलती है कि मैं शोकेस कैसे करूं, लोग क्या बोलेंगे। अबे तेरे को नहीं लगा नौकरी, तू यहाँ का है, अभी बताओ।
हमारी तो जो है वो बताओ ना, लीड कोड के प्रॉब्लम छुड़ाए, अरे लिखो ना, आई एम सॉल्विंग लीड कोड डेली वन एग्जाम्पल, क्या गलत है? अब सर इससे फायदा कैसे को, मेरे को फायदा तिजोरी में का पैसा चाहिए पहले वो बताओ, तो बता दो। जब आपकी ये सब चीजें होगी ना, ये सब विजिबिलिटी बढ़ेगी ना। जैसे ये पहले लिख लेता हूं, विजिबिलिटी हो गया, कोर्सेस यू आर डूइंग, सर्टिफिकेशंस यू आर रिसीविंग, है ना, सम टेस्ट यू आर सॉल्विंग। ओके, ये जब करते हो तो आपकी विजिबिलिटी इससे बढ़ेगी, इससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, और आपको कोई तो आपके पहचान में से किसी से जगह वहां पे आपको रेफर करेगा। ओके, रेफर करेगा, और आपको ऑटोमेटिक बोलेगा कि आर यू इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे लोग नहीं मिल रहे, क्योंकि मैं समझ लो 13,000 देना चाह रहा हूँ पेमेंट, और मेरे को लोग ही नहीं मिल रहे यार, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा। तो ऐसी केस में आपको अप्रोच कर सकते हैं, यार मुझे ना 7 लाख का पैकेज देना है, 7 लाख, और यार मैं इंटरव्यू ले जा रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। तो फिर बोलूंगा यार कोई है क्या तुम्हारे नेटवर्क में, देखो जरा सा। तो अब जाके उनको याद आती है, अबे यार ये लड़का ना कुछ बहुत ही एक्टिव है, कुछ ना कुछ करते रहता ताम झाम उल्टा सीधा, कॉन्फिडेंस का बंदे में बहुत है, इतना सारा करता, मतलब कुछ तो कॉन्फिडेंस होगा ना, नहीं तो काय को फालतू में शो पेश करेगा। तब जाके आपको अप्रोच करते हैं। आप कितना अप्लाई कर लोगे तो बहुत कम सिनारियो मिलेंगे कि मेरे को लिंक्डइन से ही सब नौकरी लग गई, कुछ नहीं रहता ऐसा वैसा। गाइस पहले समझा? यस, मुस्कान, यू अंडरस्टूड माय कंसेप्ट। अरे समझा क्या, जिन लोगों को नौकरी चाहिए तुरंत, तिजोरी में का पैसा, पैसा ऐसे नहीं मिलता है, चोर को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एग्रीड और नॉट गाइस? बताओ, चोर रातों रात रईस हो जाते हैं क्या? चोर को भी तकलीफ करनी पड़ती है, भिखारी को भी भीख मांगने के लिए बहुत तकलीफ करनी पड़ती है। डायरेक्ट भीख उसके घर में डाल देते क्या लोग? करना पड़ता है कि नहीं गाइस? भिखारी कितनी मेहनत करता है सोचिए, पूरा चौराहे पे खड़ा रहता है दिन भर शर्म भूल के, सनराइज के अंदर उसके ऊपर सन होता है, कपड़े फटे हुए पहनना पड़ता है जबकि उसकी इच्छा नहीं होती है, हर किसी के आगे हाथ फेरना पड़ता है जबकि उसको पता होता है कि उसमें से मेरे को 90% लोग भीख ही नहीं देंगे। इट इज सेम, इट इज सेम, इट इज जस्ट वी आर पुटिंग गुड क्लोथ्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। उसको रिप्रेजेंटेशन करना होता है पहले, फटे कपड़े, बाल ऐसे वैसे सब आड़ा टेढ़ा करके, फिर वो ऐसे ऐसे बेगिंग करता है, और उसको पता है 90% रिजेक्शन होता है। बताइए गाइस, भिखारी को भी 90% रिजेक्शन होता है कि नहीं होता है? आप बताइए, लिखे हाँ या ना? 90% रिजेक्शन। उसमें वो दिन में सक्सेस होता है, रात को जाके वो वाह यार कुछ तो कमाई हो गई। उसको पता है कि मैं मिलेनियर नहीं बनने वाला हूं इस। यही हमारा है। तो सबको लिंक्डइन इज अंडरस्टूड फर्स्ट, व्हाट इज लिंक्डइन, हाउ टू यूज इट। कितने लोगों ने पोस्ट किया जब मैंने पूछा, तो आपके आगे आंसर है, आपके आगे आंसर है। मैं कैसे करूं, मैं उसका नाम क्यों डालूं, मैं उसको क्या डालूं? सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आज सब लोग आंसर देंगे मुझे। आपने अब तक, एक क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, देखो, रीपोस्ट, क्या बोला मैं? रीपोस्ट, रिपोस्ट करके एक बटन होती है वहां पे, मतलब जैसे मैंने पोस्ट किया ना, तो रीपोस्ट मतलब वो सबको दिख जाएगा। ओके, ये समझा क्या रीपोस्ट गाइस? समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? रीपोस्ट बटन सबको क्लियर है? पोल इज इन फ्रंट ऑफ यू। दूसरों की चीजों को रीपोस्ट कभी किया क्या? एक ऑप्शन और देना चाहिए था, नहीं सर नहीं दबाया, मैंने दिया ही नहीं ऑप्शन। जो है वो ईमानदारी से लिखिए। सर रिपोस्ट रिपोर्ट क्या होता? भाई तू आईटी के लायक नहीं है, तू छोड़ ही दे।
किसी ने बोला लिंक्डइन में नौकरियां मिलती तो बना लिया फॉर्म फटाफट फटाफट। ये देखिए रिपोस्ट क्या होता है, ये देखो, ये लड़की है ना कोई, तो राधा, आई एम स्टार्टिंग न्यू शेयर, तो कभी ये बटन दबाई क्या? ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न ये है। किसी ने सर्टिफिकेशन अगर किया है कोई, ये फालतू चीजें नहीं, बट कुछ अगर कोई स्किल शेयरिंग कर रहा है, आई एम हैप्पी टू शेयर, कभी दबाया एक आध बार? पूरे जीवन में एक बार नहीं दबाया। मतलब आप चाहते हो, आप सेल्फिश हो, आप चाहते हो कि अपना ही भला हो जाए, दूसरों का भला हो ना हो, उससे आपको कोई जीवन में कोई महत्व नहीं है, आपको कोई लेना देना ही नहीं है। मेरा जीवन सुखी, मैं सुखी। गाइस, डिड यू गेट द आंसर? डिड यू गेट द आंसर? हेलो, सबको समझा? तो गाइस, आप अपने बारे में सोचते हो तो इंटरव्यूअर भी अपने ही बारे में सोचता है। इंटरव्यूअर भी बोलता है तू अपने बारे में सोचता है तो मैं मेरा क्यों नहीं सोचूं? मैं हर चीज सोचूंगा। तूने कैसे कपड़े पहने हैं, तूने कैसी इस्त्री की है कि नहीं की है, तूने लाइट कलर का कपड़ा पहना कि नहीं पहना, जूते कैसे, मैं भी मेरा ही सोचूंगा। मैं तेरा क्यों सोचूं? तेरे घर में पैसे नहीं है, तू इस्त्री नहीं कर सकता, मैं काय को सोचूं? गाइस, आपको समझ में आ रहा है एटीट्यूड? हेलो, स्किल ही नहीं, स्किल ही नहीं है, क्या रिपोस्ट करे? यस, आपके पास स्किल नहीं है, दूसरों की स्किल को रिपोस्ट करना होता है। समझ में आया क्या? हेलो सर, मेरे पास स्किल ही नहीं है इसलिए आपके पास आया। तो मैं तो दे रहा हूं, पर जो स्किल मैं दे नहीं सकता, आपके अंदर वो एटीट्यूड लाना पड़ेगा पहले, कि दूसरों की स्किल्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा। समझ आया क्या? हेलो, रीनेम योरसेल्फ, आई एम नॉट एबल टू सी योर नेम। समझ लगा है? इसके लिए कोई स्किल नहीं बता सकते हम। चलो नहीं, लिंक्डइन पहली बार देखा तो फेसबुक पे कभी शेयर किया हो, इंस्टा पे दूसरों को कभी शेयर किया हो, तो वो सोचिए। इंटरव्यू में ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली, क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? कुछ लोग अच्छे पहनेंगे। तो गाइज, आपको देखो, 115 में से केवल 62 लोगों ने रिप्लाई किया, और आपके आगे आंसर्स। तो गाइज, आज से ये इंप्रूवमेंट करोगे कि नहीं? जरा पॉजिटिवनेस, थोड़ा एक्टिव एटीट्यूड दिखाओगे कि नहीं उस लिंक्डइन पे? हेलो, बोलिए। क्या कर लेगा कोई? कोई कुछ नहीं कर सकता, शर्माओ नहीं उसमें फालतू। मैं किरण एकेडमी कोर्स कर रहा हूं, कैसे लिखूं? अब कैसे लिखूं? क्या लीक कर रहा है? नहीं, फिर पता चल जाएगा लोगों को। तो वैसे कौन सा सीक्रेट सॉस है? ऐसा कौन सा बहुत बड़ा सीक्रेट है? नहीं सर, मेरे को टेस्ट में 60 मार्क मिले, कैसे करूं? अरे भाई, 60 नहीं, 70 मिलाने का ट्राई कर, फिर डाल। 90 मार्क मिला, फिर डाल ये सर्टिफिकेट एक हाथ। इट्स ऑल गुड। गाइज, एवरीबडी इज गेटिंग हाउ टू रिमूव निगेटिव मेंटेलिटी। असूज, आपको समझा क्या? क्या बोला मैंने? जिस चीज में बुद्धि नहीं लगती वो तो करो। लोगों को पता चले कि बंदा एक्टिव। अरे आपके नेटवर्क में पता चलेगा कि हाँ यार, श्रद्धा नाम की लड़की है, कुछ ना कुछ करती ही रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है, शी इज रीडिंग दिस प्रोजेक्ट, ये कर रही, कुछ ना कुछ तो होगा यार। और हमेशा ये इमेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट। मैंने स्टैक में और कुछ बनाना था, पर मैंने बनाया नहीं, आपको बुरा लगा होता। यहाँ पे आईआईटी एनआईटी ने कुछ जगह ले ली, और अगर मैं करूँ ना, तो देखो, इसको नीचे नीचे करेंगे ना, यहाँ पे बी ग्रेड सी ग्रेड कॉलेज ने भी कुछ ना कुछ जगह खाई हुई है, उसमें भी तो टैलेंटेड लड़के होते हैं। बी ग्रेड, सी ग्रेड, है ना? तो उन्होंने भी आपकी जगह ले ली है, उन कॉलेजेस में से भी कुछ ना कुछ प्लेस हुए हैं, तो इसको और नीचे नीचे करना पड़ेगा। ये समझे? तो इस टाइप से होता है। तो एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड हु एम आई, हाउ आई शुड बी डूइंग थिंग्स। मैं यहाँ पे आपको प्लीज करने नहीं आया हूँ, खुश करने नहीं आया हूँ, पहले तो ये समझ लो। कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो नाराज कर दिए। नाराज नहीं किए मेरे भाई। मेरा काम ये है कि लोगों को सही सच्चाई बताना कि भाई ऐसे ऐसे है, तेरा रास्ता ये है, अगर ये रास्ते पे जाएगा तो भला होगा। तो इसका मतलब ये है, मैं दिखाता हूँ गुरु। ये जो अभी दूसरों ने और जगह ले ली ना, जो ये बी ग्रेड सी ग्रेड वालों ने जगह ले ली अपनी, है ना? तो ये बी ग्रेड सी ग्रेड कॉलेज है,
मतलब जो कॉलेजेस बहुत रिपीटेड नहीं, पर उसमें भी तो टैलेंटेड लड़के होते हैं गाइस। अभी देखो और जगह कम होगी कि नहीं, इसका फोटो ले लो आप, अगर आपको चाहिए। आई विल सेंड इट अक्रॉस। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, आज से फिर सबका इंप्रूवमेंट होगा इसमें। लिंक्डइन विंक्डइन में कुछ ना कुछ अच्छा दिखेगा मुझे। लीड कोड सॉल्व कर रहे हो, करो। अरे करोगे कि नहीं, अभी तो बोलो। निगेटिविटी को दूर करना है। किसी ने एब्स्ट्रैक्शन, जैसे एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है भाई? एब्स्ट्रैक्शन बताओ, एब्स्ट्रैक्शन सुना है किसी ने? एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन किसी ने अगर सुनी हो, जिसका थोड़ा बहुत जावा हुआ हो। यस, लिखिए। तो मैं बोलता हूँ एक्सपोजिंग, कुछ भी हो सकती है डेफिनेशन का। एक्सपोजिंग ओनली रिक्वायर्ड थिंग्स, है ना? या तो हाइडिंग, क्या लिखा है, हाइडिंग डिटेल्स। मैं आपका लेता हूँ। प्रिया मैडम, मैंने वेज नहीं पूछे, डेफिनेशन सही है गाइस। ये समझ लो ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है। अब दो में से एक ही आपको समझ लो, बोलने बोला सिलेक्ट करो एक कुछ भी, ओके। तो ये 1 है, ये 2 है। बताओ, दोनों भी थोड़ा थोड़ा तो सेम ही लग रहा है ना? गाइस एवरीबॉडी ओके, अंडरस्टूड? सिलेक्ट करो कौन सा आपको अच्छा लगा। कोई भी हो सकता है। वेरी गुड, सही है। हाइडिंग डेटा एंड अननेसेसरी डिटेल्स, यस, सही है। करेक्ट। अगर नहीं हुआ एब्स्ट्रैक्शन टॉपिक तो कुछ दिक्कत नहीं गई, होगा तब आपको लिखना है, अभी मत लो टेंशन। ओके, आपको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से सिलेक्ट करना है सुरेख, ओके। देखो, दो में से पॉजिटिविटी किस आंसर में आती है बताओ? दोनों एक ही चीज है। पॉजिटिविटी 1 में है कि 2 में है? 1 में है, ओके। तो कुछ लोग ये पॉजिटिव वे में दे सकते हैं, कुछ नेगेटिव वे में, तो अच्छा रहेगा 1 वाला दे दो। जस्ट मैं बोला दोनों सेम है, दोनों में सेम मार्क्स मिलेंगे, दोनों में सेम सिलेक्शन होगा। जस्ट आई एम टेलिंग यू, वन नेगेटिव थिंकिंग, अनदर पॉजिटिव, बात एक ही कर रहे हैं, ओके। हाइडिंग डिटेल बोलते कुछ लोग अरे सही है, हाइडिंग डिटेल, पर हाइड तो तब करेगा ना जब तेरे पास कुछ दिखाने लायक होगा। सही है कि नहीं है? तो ये भी एक डेफिनेशन है, ये भी, पर माइंडसेट एक नेगेटिव और पॉजिटिव समझाना चाह रहा। हेलो गाइस, ये सबको समझा मेरी बात करने का ये तरीका क्या था? इट्स वेरी सिंपल, बी पॉजिटिव। मेरे पास जो आंसर आए, सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने 2 बोला है, क्योंकि उनका माइंड सेट पॉजिटिव की तरफ लेके जाओ। जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया, बाकी दोनों डेफिनेशन सही है, नो प्रॉब्लम, ओके। ये समझ में आया कि नहीं? एनीवेज, हाँ, तो ये इसका आंसर देखो क्या है।
इसका आंसर ये है, कॉम्पिटिटिव के जैसे पढ़ाई करोगे तो आपका सक्सेस 100% है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में आपको पता है आपने 50 बुक्स पढ़ी होगी, कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। यहाँ पे 2-4 बुक पढ़नी है, खत्म कहानी। हेलो गाइस, सबको समझा कि नहीं? तो अगर आप सेम स्टडी करोगे जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे थे, आपका सक्सेस श्योर शॉट है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ओके। व्हाट कैन आई डू इफ आई हैव लेस मार्क्स इन 12? नो प्रॉब्लम गाइस, ऐसा कुछ नहीं, हो जाता है, कम अपॉर्चुनिटी आती है, बट यू प्रिपेयर वेल, बहुत अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। So I tried to solve most of the issues guys, and I hope आपको कुछ ना कुछ इस सेशन से कुछ ना कुछ आइडिया आया होगा। मैंने यूट्यूब का वीडियो भी दिखाया, कुछ मिला कि नहीं गाइस? तो अगर देखो, दो चीजें होती है, एक तो अच्छी चीज ले जाओ या बेकार चीज ले आओ, या बेकार चीज भी लेके जाओ, ठीक है? या डिस्ट्रैक्शन ये भी एक इम्पॉर्टेंट है गाइज आपके लाइफ में। आप पहले ना सब लोग पॉजिटिविटी पे फोकस करो, क्योंकि बहुत डिप्रेशन हो रहा है गाइज अभी ग्रेजुएट्स में, इतना डिप्रेशन है, इतना डिप्रेशन है। टाइम बहाने के लिए वो इंस्टा पे भी मजा नहीं आ रहा उनको, वो रील्स भी आपको लगता है रील्स में टाइम पास नहीं कर रहे लोग, कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या करे, इसलिए इंस्टा की रील्स कर रहे हैं गाइज। मैं सही बात बोल रहा हूँ? नहीं हो गया मेरा सेशन खत्म, अब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। गाइज आर यू ऑल गेटिंग और नॉट? इंस्टा रील्स देखने के लिए नहीं जा रहे लोग, कुछ नहीं करने के लिए, इसलिए रील्स पे जा रहे हैं। अब क्या करें, समय बचा हुआ है, बोर मार रहा है, वो टेंशन है, प्रेशर है, पीयर प्रेशर, सोशल प्रेशर है, तो फ्रस्ट्रेट हो के उस पे ये कर रहा है। सरिता ग्लाइडर्स टेस्ट असाइनमेंट मतलब वो हैकर रैंक लीड कोड ही है, सेम रहेगा, ठीक है, डोंट वरी। तो मेरा कहना क्या है कि ये फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलिए, पॉजिटिविटी लाइए। मैं कौन हूं इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, आपको अपने आप सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे गाइस। कैसा है, डिस्ट्रैक्शन देखो आपके ऊपर है, कितना आप पढ़ाई करते हो। अरे 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई करो ना यार। अगर मैं आज भी क्वेश्चन पूछता हूँ आप में से, कल यस्टरडे जिन्होंने ट्यूशन अटेंड की, ट्यूशन अटेंड करने के बाद 6 आवर्स से ज्यादा कितने लोगों ने पढ़ाई की, बताओ तो। 6 आवर्स से ज्यादा कितने लोगों ने पढ़ाई की कल द किरण एकेडमी में सेशन होने के बाद, बताओ तो। 6 घंटा, 6 या 6 से ऊपर कितने लोगों ने की? लिखिए यस, लिखिए, अगर किया नो लिखिए, नो लिखो, लिखो 100 रिप्लाई चाहिए मेरे को, सही में लिखो, उसमें कुछ छुपाने वाला नहीं है ना, जो है वो लिखो, जो है वो लिखिए। 6 घंटे से ऊपर क्लासरूम के निकलने के बाद लिखिए। अब आपको रिजल्ट दिख रहा है क्या गाइस? हेलो, नहीं लग सकती जॉब, लगेगी भी तो 5,000, 4,000, 2,000, 12,000, 18,000, वो अंग्रेजी नहीं जमेगी उधर, कुछ नहीं। यस, यस, अभी समझा क्या आपको? हेलो गाइस, आंसर मिला? अरे समझा क्या? नौकरी कशी मिळणार बाळांनो? कुछ क्लियर? लो मैंने लॉन्च किया, समझा क्या? नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका आंसर लिखो, चैट पोल पोल दिया है मैंने। नहीं लग सकती आपको, देखो शाप नहीं दे रहा हूँ ये जस्ट ऐसे बोल रहा हूँ, नहीं लग सकती, मुझे पता है ना, बट क्या है, करना पड़ता है जीवन में, मेरे को भी चलाना है, आपको भी चलाना है। यस, 3 आवर भी पॉसिबल नहीं हो रहा, मतलब डिस्ट्रैक्टेड है ना साईनाथ, है कि नहीं बताओ? लिखिए, मैंने पोल भेजा आपको, जॉब नहीं मिल सकती, मैं तो क्लियर कट बता दे रहा हूँ ना, उसमें क्या है। आप आज मम्मी पापा को बता दीजिए मेरा नाम, सर ने ऐसा बोल दिया, बोलना कि जॉब नहीं मिल सकती। वो बोलेंगे ऐसा क्यों बोला, तो फिर ये रीजन बताइएगा, क्या क्वेश्चन पूछो बताओगे? सर नहीं नहीं, कोई बकवास स्टडी कर लो तो भी चलेगा। 6 घंटे क्वालिटी स्टडी भी नहीं बोल रहा ना मैं, 6 घंटे से ऊपर पढ़ाई, केवल पढ़ाई, पाइथन तो मैं 5-6 घंटे पाइथन प्रैक्टिस पढ़ूंगा या कुछ तो करूंगा, मैं 6 घंटे से ऊपर ही करूंगा, और पाइथन कोई टच करूंगा, कोई यूट्यूब नहीं, कोई कुछ नहीं, बस। तो गाइज रिजल्ट आपके सामने है कि नहीं है? क्लियर? बाकी लोग छुड़ाओ उसको, छुड़ाइए, मैंने पोल डाला हुआ है, डिस्प्ले आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, लॉक कर दीजिए 2 में से एक आंसर। कुछ लोग तो इतने डिप्रेस्ड है कि बटन भी नहीं दबा पा रहे हो, सोच रहे हो क्या यार, साला फ्रस्ट्रेट कर दिया यार, पैसे दिए फिर भी साहब बेकार स्थिति कर दी। बड़ा ऐसा ही है, जीवन का सत्य है, जीवन के सत्य से कब तक भागोगे? एक दिन सत्य का सामना करना ही होता है हर किसी को, कोई ऑप्शन नहीं उसके,
कोई भी रहे, आप रहे, मैं रहे, सत्य सत्य होता है, असत्य नहीं बन सकता है। अथर्व सही है कि नहीं है? सत्य को कोई नहीं झुका सकता है, सत्य में हो जयते। कल अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया है, पोस्ट देखिए आप। सत्य को नहीं झुका सकता ना। समझे? सत्य को नहीं झुका सकते हो। ये देखो क्या लिखा है, सत्य में हो जयते, आम आदमी पार्टी। लिखे अब तो पोल छुड़ाओ। तो आप सबने देखा कितने लड़कों ने स्टडी की, आपके आगे रिजल्ट है। आप समझदार हो, 18 साल की उम्र आप क्रॉस कर चुके हो, इसलिए आपको अडल्ट कहते हैं। आपका ब्रेन विकसित होता है। तो अब आप सोचिए कि अब तो भी करोगे क्या, इतना मैंने झाड़ा तो। बोलो, अब अनम्यूट कर सकते हो आप। यस सर। गाइस, नौकरी नहीं मिल सकती, मैंने इतना बड़ा डिक्लेरेशन दे दिया, मतलब आप सोच सकते हो। तो गाइस अभी सबको समझा, पढ़ाई करनी पड़ेगी गाइस, नहीं हो Yes, सकता। sir. हाँ, और खुद Yes, ही फिर sir. डिप्रेशन में आएंगे। अब मेरे को यस तो सर। 6-8 घंटे यस पढ़ाई सर। करोगे तो नौकरी लग सकती ना, थोड़ा बहुत संभव है। अब तुम करोगे 2 घंटे पढ़ाई, यार तुम्हारे जैसे बहुत है उधर मार्केट में। आप आज से अपने टेबल पे इस फोटो को आप कलर प्रिंट आउट निकाल के रख दीजिएगा। इसका फोटो लिया गया किसी ने? नहीं लिया होगा, शर्म आती होगी। Yes, sir. Yeah. यस सर। चलिए। अरे Yes, sir. वाह, लिया है फोटो। थैंक यू थैंक यू, मतलब आप एक्सेप्ट किए थोड़ा बहुत, गए Yeah. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इस चीज को। हाँ ना, जो है वही लिखा है मैंने, पूरा नहीं मानना है, बट दिस इज व्हाट इट इज। कैसा है? हम हैं वैसे तो यार, हमको पढ़ना पड़ेगा। आपको सक्सेस की मैं गारंटी देता हूँ। किरण एकेडमी ऐसी प्लेस है जहाँ पे एटलीस्ट आपको रियलिटी दिखाई जा रही है, प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं कि नहीं? प्रोग्राम क्लास में प्रैक्टिकल करवाते हैं सर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तीन sir. तीन घंटे का क्लास होता है। अभी हम अगले महीने इसको और 4 घंटे का करने वाले हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, वी आर। मैंने कैसे किया इंस्टीट्यूट को, देखो मैंने आउट ऑफ द कंपटीशन लेकर रख दिया है, कॉम्पिटिटर से कंपटीशन ही नहीं रखा मैंने। बेस्ट ऑफ बेस्ट फैकल्टी देख, तुमको इतना पढ़ाई रख रहा हो, इतनी अच्छी जगह पे आए हो, इतना सारा सब कुछ हम कर रहे हैं, तो यार आपसे भी तो उम्मीद है ना। देखो आप मेरे को बताओ, आपका अगर मुझे 6 घंटे का सपोर्ट मिल गया, मैं 3 घंटे का सपोर्ट दे रहा हूँ आपको, तो टोटल 9-10 घंटे हो गए ना यार। 10 घंटे में कोई दुनिया का ले आओ, कौन आपको झुका सकेगा? ये गाइस सही बोला कि झूठ बोला मैंने, बताओ। अब किरण ही अकेला कूदेगा तो कैसे होगा? समझे ना? क्लियर? तो Yes, sir. समझने का, कुछ भी फालतू किसी के बहकावे में मत आओ। यस जैसे सर। अभी किसी ने पूछा कि सर मेरे दोस्त मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टर मत कर। अरे तेरे वो, मतलब कैसा रहता है ना अभी, बहुत अच्छा है टेस्टिंग, बहुत बहुत अच्छा है, मैं तो बोलता हूँ बहुत करना अगर अच्छा है तो। पर क्या है, हम बाहर की दुनिया देखते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं। और ऐसे टेस्टर को मिलेंगे भी जो डीमोटिवेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, अ, वो कुछ भी बेकार है, अरे पढ़ाई नहीं करता होगा वो, है ना। तो पढ़ाई के जो करते हैं टेस्टर, वो कहीं क्या कहीं चले जाते हैं, डेवलपर के ऊपर चले जाते हैं। डेवलपर्स को जॉब से निकाल देते हैं अगर काम नहीं कर पाया तो। टेस्टर एटलीस्ट थोड़ी देर रुका रहता है, समझे ना। तो टेस्टर का बहुत अच्छा प्रोफाइल होता है अगर वो पढ़ने वाला हो तो। डेवलपर का कट थ्रोट कंपटीशन है ना। अभी ये पेन है, पेन बनाने वाला और टेस्टर, बताओ दो में से कौन कमजोर रहा तो कंपनी निकाल देगी, बताओ। एक तो टेस्टर और डेवलपर। डेवलपर मतलब पेन बना ही नहीं, बना ही नहीं, घर आ गया से। टेस्टर ठीक है ना, टेस्टिंग में 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे, हो जाएगा, काम तो बन रहा है ना। ये समझा क्या गाइस, डेवलपर और टेस्टर का डिफरेंस? डेवलपर के लिए कोई स्पेस नहीं है, नहीं बनाया। इवन आपके घर में मुझे बताइए, टेबल बनाने वाला कल आने वाला था, कल नहीं आया, परसों भी नहीं आया, तो आप दूसरा टेबल वाला ढूंढते हो कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? और टेबल चेक करने वाला चल जाता, खुद ही कर लेंगे ऐसे ऐसे चेक करके, हाँ ठीक है ना। टेस्टिंग वाला स्टैम्प मार के निकल जाएगा, चल भाई तेरा टेबल अच्छा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फिर अपनी उतनी ये भी चाहिए ना। बनना है डेवलपर, 6 घंटे पढ़ाई करता कि मैं तो नहीं करता, तो फिर नहीं करता तो फिर क्या है? समज लगाए सगळ्यांना? हॅलो? यस सर। यस सर। हा, तर या Yes, सेशनचा sir. काही फायदा होईल की नाही?
यस ठीक सर। है? यस हाँ, सर। कहीं ना कहीं फायदा, कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो आप भी अच्छे रहेंगे, आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बिकॉज यू आर एट द बेस्ट प्लेस। मैं इंडस्ट्रियल बंदा हूँ, आई एम ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई कैन चेंज द थिंग्स व्हाट एवर यू नीड, एंड आई एम ट्राइंग टू गिव माय बेस्ट ऑफ बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। मैं कमिटेड हूँ इसके लिए। और देखिए, आपको मैं सीधा मिल भी रहा हूँ सर, आपके कुछ भी कंसर्न्स है कैसे भी है, तो मतलब इट्स लाइक दैट। हमारे यहाँ पे ऑपरेशन टीम देखिए, लाइव सपोर्ट, किसी ने लाइव टेक्निकल सपोर्ट का हेल्प लिया है क्या आज तक? लाइव टेक्निकल सपोर्ट लिया है क्या? नहीं सर। पता है कहाँ से लेते हैं? हाँ पता है सर। हाँ, तो मुझे बताओ, अब इतनी बड़ी सुविधा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किए नहीं किए, बट यार वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। ये तो मानते हो कि नहीं, बताओ? आपको मदद करने के लिए तुरंत जूम पे लॉगिन करो, तो आपको यहाँ पे देखो ये मिल रहा है ना, क्लिक फॉर इक्लिप्स नहीं चल रहा, बोलो ये टीचर को दिन भर बिठाया हुआ है। चिंचवड़ ब्रांच इज बेस्ट सर, यस यस, एवरीबॉडी इज बेस्ट। आप बस कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा कहना यही है, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनंती है कि 6-7 घंटे पढ़ाई कीजिए क्लास के अलावा, तो ही सक्सेस आपके कदम चुनेगा, छुएगा। अदरवाइज आपको जॉब नहीं मिलेगी। इतना सीधा बोल दिया मैंने, देखो ब्लरी रखा क्या, मैंने ये बोला क्या कि जॉब मिलने में डिफिकल्टी होगी? क्या बोला मैंने? डायरेक्ट बताओ ओंकार, क्या बोला मैंने? मुस्कान, सीधा सीधा बताओ क्या बोला? 6 घंटे पढ़ाई नहीं करोगे डिफिकल्टी जाएगी बोला, या नहीं मिलेगी बोला? कौन बताएगा? 6 घंटे या 6 घंटे से ऊपर पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा? सीधा सीधा बताओ। गौरी, कोई तो बताओ। जॉब नहीं मिलेगी। डिफिकल्टी नहीं बोला ना, ना मैंने जॉब नहीं डिफिकल्टी मिलेगी। बोली। जॉब नहीं मिलेगी। अब आप ही लिख लो ना घर में, मैं लाना कि नहीं मिलना, कहीं टेंशन नहीं, जो मस्त। पढ़ाई करते हो तो मिल सकती है, पढ़ाई करते हो तो मिल सकती है, क्योंकि 7 घंटे करोगे तो एक 12 घंटे वाला भी बंदा जागा हुआ है, 12 घंटे करते हो तो एक 14 घंटे भी पढ़ाई कर रहा है, पर 6 घंटे के नीचे तो। आपके इंटरव्यू कहां से चालू होते हैं? आपके इंटरव्यू तो यहां से, पहला राउंड बताओ कौन सा होता है आपके इंटरव्यू? पहला राउंड कौन सा होता है बताओ? पहला राउंड कौन सा होता है? हाँ, एप्टीट्यूड नो। पहला राउंड तो बस पकड़ने से चालू होता है, बस लेट हो गई तो हम घर निकल जाते हैं, उधर ही फेल। दूसरा राउंड वो एग्जाम का फॉर्म भरने नहीं आता है, वो पहला राउंड है ये सब। तीसरा, फोन पे बोलते नहीं आता है, वो बोलता है इंटरव्यू शेड्यूल करूं क्या कल, शुड आई शेड्यूल इंटरव्यू? नो, यस 11 o'clock, ओके आई विल सी, रिजेक्ट। पहला राउंड समझ आया आपको कौन सा है? रिज्यूमे है, वो यस लिखा सर। ही नहीं रिज्यूमे बराबर। पहला राउंड ये है। फर्स्ट इंटरव्यू देने गया 10 बजे, मेरे को 3 बज गए लेने में, मैं जा रहा घर। पहला राउंड इधर ही हो गया। सरिता, गौरी, ओंकार, गजेंद्र, पूजा, समझ लगा है? गौरी सबको समझा क्या? 10 यस बजे सर। बुलाया था, यस 4 सर। बज गए मेरे को इंटरव्यू के लिए, अभी तक बैठा छू मैं यहाँ पे। जय, मैं गूगल पे रिव्यू डाल देता कंपनी के बारे में, खराब कंपनी है, लोगों को बिठा के रखती है। अरे कैसे रे, गूगल पे रिव्यू डाल दिया कंपनी का, बेवकूफ जैसे। ये भूल गया कि मैं यहाँ हूं। गाइस, मेरा दर्द समझा आपको? हेलो, यस सर। फील कर पा रहे यस हो कि सर। नहीं? इतने गधे लड़के हैं कि वहां जाके गूगल कंपनी का रिव्यू डाल देते हैं, वो ये कंपनी पे रिव्यू डाल देते। दिस कंपनी इज वेरी बैड, वी केम एट 10 o'clock एंड वी आर सिटिंग फॉर 4 hours हियर। अबे बताइएगा, इज दिस रॉन्ग और नॉट? मेरा सेशन हो गया, बाकी लोग जा सकते हैं, जस्ट बता रहा हूँ मैं, जस्ट बातें कर रहा हूँ, जस्ट मेरा मन किया इसे। गाइस रॉन्ग है ना? तो पहला राउंड आपका ये है, दूसरा राउंड फिर एप्टीट्यूड में ये ना वो। तो ये चीज हो गई। उसके बाद आज सब लोग जो अच्छे हैं, जो सही में जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज का एक चैलेंज दे देता हूं। आप सब लोगों को jbktest.com पे जाना है। यहाँ पे इंग्लिश, ये देखो वर्बल टेस्ट है, कैन यू सी वर्बल टेस्ट? आज से छोटा छोटा सा एक छुड़ा के देखेंगे सब लोग, आंसर भी दिए। ये समझा क्या करना है? हेलो, यस सर। इसमें वर्बल टेस्ट, ये सब लोग यस इसका सर। यस सर। भाई, ये छुड़ा लिया तो जीवन धन्य हो गया। यस वर्बल सर। टेस्ट छुड़ाओ, कुछ ना कुछ समझेगा। 1 वर्ड सब ये होता है, इसमें सब गरीब हो जाते हैं। इसका फोटो ले लो अदरवाइज।
तो होप गाइस, तो गाइस ये सेशन होते रहना चाहिए, राइट? आपको हेल्प होती है कुछ बातें करके, समय तो नहीं जाता है। नहीं सर। नहीं ना, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू गाइस, सी यू अगेन next weekend. Most probably I was out for last 2 weekends, so I was not able to take, but every week I try my best to take the things. Okay, thank you, see you again, bye bye. This video Thank you, will sir. again, Thank you, sir. हर वीक मिला करो सर। यस सर, जरूर आएंगे। थैंक यू।